Hello friends, my name is Ravi Misra and welcome once again to my channel Life of पढ़ाई यूपीएससी। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए एक नए क्वेश्चन के साथ है और ये क्वेश्चन भी GS3 का है, चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टमेंट in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth. Discuss in the light of India's experience. Okay, so this is the question. So now we have to write the introduction, but first of all we have to put light on what is inclusive economic growth, means what is inclusive growth. So friends, inclusive growth is the economic growth that is distributed fairly across society and creates opportunity for all. Okay, means not just for the rich people but even for the poor section of the people. Okay, so means this growth is distributed fairly across the society. Okay, and opportunities are open for all the section of the society. So this is the meaning of the inclusive growth. So now we will head toward introduction. Then in the introduction I have written that basic infrastructure facilities in the country provide the foundation of growth. Okay, means जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होता है वो किसी भी कंट्री को फाउंडेशन एज अ ऑफ अ ग्रोथ काम करता है. ओके, और सेकंड मैंने ये चीज़ लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट सब ऑप्टिमल लेवल एंड रिमेन डिस्टेंट फ्रॉम इट्स पोटेंशियल एंड फ्रंटियर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री. मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ adequate infrastructure, what will happen? There will be suboptimal level and remain distant from its potential and frontier growth trajectory. Means this will happen in the absence of adequate infrastructure. तो फ्रेंड्स अब मैंने बॉडी में ये चीज़ लिखा है कि लाइक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, तो पहला पॉइंट मैंने ये चीज़ लिखा है कि व्हाट विल हैपन इफ़ यू विल इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी क्रिएशन ऑफ जॉब्स. ओके, इफ़ यू विल इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, तो देन देयर विल बी क्रिएशन ऑफ जॉब्स. सेकेंड मीन्स इसमें मैंने क्या क्या लिखा है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज रोड कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, रेलवे कंस्ट्रक्शन, etc. These are labor intensive jobs. Okay, means in these jobs, in this creation, in this infrastructure development, this is labor intensive. Okay, we will require labor. Okay, so then what will it lead to? Then it will lead to increase in employment opportunity. Okay, both in formal and informal sectors. Okay, thus it will boost demand. Okay, means domestic demand. If there will be creation of jobs, then people will have money. Okay, then if people will have money, then they will buy products. Okay, they will buy product that they need, then that will increase the demand of the product. So this will increase what demand, this will boost economy. Okay, that is why it is said that infrastructure development is necessary, because investment in infrastructure is more important than revenue expenditure. It has been said that capital expenditure is more important than revenue expenditure. This is the reason. Now the second point is farmer income. Suppose if we invest in infrastructure, okay,
means in agrarian infrastructure that will play a critical role in ensuring the doubling of farmer income. Okay, in doubling of farmer income. So friends, the goal to set the double of farmers income by 2022 and 2023 is central to promote the farmers welfare. Okay, reduce agrarian distress, bring parity between the incomes of farmers and those working in non-agricultural profession. And how it will happen, that suppose if we invest in irrigation, okay, storage, processing and marketing infrastructure, then that will, this investment, okay, in this, then what it will happen, it will again help farmer to double their income. Okay, to double their income. Now the third point is health and well-being. So infrastructure development of superior health facilities, okay, electronic health records, okay, better equipped health infrastructure at primary level, okay, this is also important, okay, because this will also include inclusive economic growth and also rapid our economic growth. So friend, first of all we will like to see that what is electronic health records. Okay, so there is national digital health mission, okay, launched by our prime minister on 74th independence day. Then in that health mission, it was emphasis that there will be four features. Okay, first health id, okay, second personal health records, third digidoctor doctor, and fourth health facility registry. Okay, so this is means we can say that it is a national digital health mission. In this mode, government is planning to invest in electronic health records. It will benefit the people. Now if we go to the fourth point, then the fourth point is logistic cost. Okay, so building world class roads, railways, ports, inland waterways, this will cut down logistic cost, improve competitiveness and promote exports. Okay, what this will do, this will bring more revenues, okay, to government and promote socio economic डेवलपमेंट. सपोज हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, रेलवे में इन्वेस्ट करेंगे, फिर से पोर्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, इनलैंड वाटरवेज में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसके चलते क्या होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होगा वो रिड्यूस होगा. ओके, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होगा वो रिड्यूस होगा. इफ़ लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होगा तो उस जो भी सपोज प्रोडक्ट होगा उसका क्या होगा, उसका प्राइस कम होगा. ओके, मीन्स कम होगा, तो डैट विल व्हाट डू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस. और ओके, कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूव होगा तो क्या होगा कि उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी प्रमोट होगा. एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, ये सब चीज़ होगा तो गवर्नमेंट को क्या होगा, मोर रेवेन्यूज़ मिलेगा. ओके, मोर रेवेन्यूज़ मिलेगा. और इफ़ गवर्नमेंट को रेवेन्यूज़ मिलेगा तो वो क्या करता है, वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करता है. ओके, वो इसमें इन्वेस्ट करेगा तो ये क्या होगा, तुम आपका इंक्लूसिव ग्रोथ भी होगा और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा. ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है. फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो एमएसएमई है, ओके, एमएसएमई है, ओके, या स्मॉल बिजनेस हो गए, वो क्या है कि डिस्पर्स्ड है थ्रू आउट द इकोनॉमी एंड देयर प्रोडक्शंस एंड ग्रोथ रिक्वायर जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू compete सक्सेसफुली विथ बिग स्केल कंपनीज. जो एमएसएमईज हैं, ओके,
और या जो भी स्मॉल बिजनेस ये हैं, तो उनमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डाला जाएगा, फैसिलिटी उनको दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उनको दिया जाएगा, तो वो जो है क्या compete कर सकेंगे, ओके, compete कर सकेंगे किसके साथ, बिग स्केल जो कंपनी है, बड़े बड़े जो कंपनी हो गए, MNC हो गए, ओके, उनके साथ क्या करेंगे, compete करेंगे, ओके। और ये जो है MSME बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ओके। और बेसिकली ये जो होता है लेबर इंटेंसिव होता है, तो इफ़ लेबर इंटेंसिव है, ओके, तो दिस विल अगेन प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका ग्रोथ होगा, ओके, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल और एक्सेस टू ऑल, ओके। तो अभी हम देखेंगे कि रिसेंट जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या रहे हैं, ओके। तो पहला ये चीज़ रहा कि द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, ओके, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। तो ये एक एम्बिशियस प्लान है और इसको हम लोग गति शक्ति स्कीम भी बोलते हैं, ओके। ये जो प्लान जो है, ओके, टू इंश्योर इंटीग्रेटेड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट 4 years, ओके, विथ फोकस ऑन द ग्राउंड, सेविंग कॉस्ट एंड क्रिएटिंग जॉब्स, ओके, ये है। और इसका एम ये है टू हैव 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ओके, एंड 2 न्यू डिफेंस कॉरिडोर्स, वन इन तमिलनाडु और अनदर इन उत्तर प्रदेश। पहला तमिलनाडु में और सेकंड उत्तर प्रदेश में, यूपी में, 2 डिफेंस कॉरिडोर और 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ओके, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 11 और 2 डिफेंस कॉरिडोर। और इसका और एम है कि जो एक्सटेंडिंग जो 4G कनेक्टिविटी, ओके, टू ऑल द विलेजेस, 4G कनेक्टिविटी टू ऑल द विलेजेस, ओके, एंड एडिंग 17,000 टू द गैस पाइपलाइन नेटवर्क, ओके, ये चीज़ है। तो ये एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट सेट किया गया है और टू अचीव इन द नेक्स्ट 4 years, ओके। तो ये है, और दिस विल फैसिलिटेट प्लानिंग मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट रेंजिंग फ्रॉम द टेलीकॉम्स नेटवर्क टू द गैस पाइपलाइन टू द रोड्स एंड रेलवेज, ये देख लिया मैंने। फिर जो है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, और एक ये हो गया, और एक और होता है कौन सा, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये 2 होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो क्या है। तो ये जो दोनों जो हो गया ऑलमोस्ट सिमिलर और कंफ्यूजिंग भी लगता है। तो फर्स्ट जो है NIP, व्हाट इट विल डू, इट विल अपलिफ्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाय क्रिएटिंग जॉब्स, improving the ease of living and providing equitable access to infrastructure for all, making growth more inclusive, okay। और NIP जो है includes economic and social infrastructure project, ये है, means NIP has been declared as a group of various project, okay, which will target both economic and social infrastructure, this is the next। जो थर्ड है, the government has ambitious outlay for the implementation of the Ken-Betwa link project, okay, ये है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, मीन्स ये जो केन रिवर है और ये बेतवा रिवर है, इन दोनों को लिंक करने का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ओके। तो व्हाट इट विल डू दैट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू irrigate 9.8 lakh, okay, hectares of farmers land to receive irrigation benefits by Ken-Betwa link project, ये है। तो ये बहुत ही कि एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसका जो इन्वायरमेंटिस्ट हैं इसको मीन्स क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, ओके, बट इसको बोथ एंगल से देखना है, ओके, दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर फार्मर, ओके, फॉर इरिगेशन, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये चीज़ भी है, दोनों चीज़ देखना है इसमें। सेकंड जो 4th पॉइंट है हमारा ये है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन,
ओके, ये है। और ये जो बताया मैंने पहले कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है NIP है, और एक ये है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो बेसिकली जो ये NMP है, तो दिस एम्स टू अनलॉक द वैल्यू इन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, ओके, बाय इंगेजिंग द प्राइवेट सेक्टर। ब्राउनफील्ड, ओके, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स है इंगेजिंग द प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें क्या हुआ कि द रेवेन्यू राइट्स विल बी ट्रांसफर टू डेम, ओके, मीन्स टू द प्राइवेट सेक्टर, बट द ओनरशिप इन द प्रोजेक्ट नॉट, ओके, द ओनरशिप रिमेन्स विद द government, but the revenue rights will be transferred to the them, and the funds generated will be utilized for infrastructure creation across the country. सपोज जो इसको इफ़ हम लोग देंगे प्राइवेट सेक्टर को, तो रेवेन्यू जो इससे जो राइट्स होगा वो तो इनको जाएगा, और जो गवर्नमेंट को जो इसे देगा, जो गवर्नमेंट को जो इससे मिलेगा, ओके, मीन्स आफ्टर गिविंग टू द प्राइवेट सेक्टर, तो देन वो फंड जो किस में यूज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में होगा, ओके, अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो बेसिकली नीति आयोग हैज़ डेवलप्ड द पाइपलाइन, ओके, इन कंसल्टेशन with the infrastructure line ministries based on the mandate for the asset monetization, okay, under the union budget 2021 नीति आयोग ने इसको प्रपोज किया था। फिफ्थ जो पॉइंट है ये है, तो गवर्नमेंट हैज ए एम्बिशियस मैरीटाइम कनेक्टिविटी प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ भारतमाला एंड सागरमाला मिशन। तो बेसिकली ये जो भारतमाला और सागरमाला मिशन है, ओके, तो फर्स्ट हम लोग सागरमाला मिशन का देखते हैं, ओके, क्या है। सागरमाला मिशन जो है वो इज़ टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट, ओके, फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक ट्रेड विथ मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ओके। और जो सागरमाला जो ये है प्रोजेक्ट है, ओके, वो अप्रूव्ड कब हुआ था, यूनियन कैबिनेट से इन 2015 हुआ था, ओके, which aims at a holistic port infrastructure development, okay, along the 7,516 kilometer coastline, ठीक है, through modernization, mechanization and computerization, MMC, okay, modernization, mechanization and computerization, okay। और जो भारतमाला प्रोजेक्ट है सिमिलरली इसी के जैसा है, ओके, बट ये जो प्रोजेक्ट है अ न्यू अम्ब्रेला प्रोग्राम है फॉर द हाईवे सेक्टर्स, ओके, दैट फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग द इफिशियंसी ऑफ रोड ट्रैफिक मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री बाय ब्रिजिंग द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। तो ये जो भारतमाला है और सागरमाला है, ये लाइक एक दोनों जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो दैट विल रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट, ओके। और ये जो दोनों है वो ट्रांसपोर्टेशन में ये किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी हो जाए, गुड्स का जो मूवमेंट है वो इजी हो जाए। तो अब हम लोग कंक्लूड इफ करेंगे इसको, तो ये करेंगे कि द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, इज मस्ट टू अचीव broad and inclusive growth, okay, broad and inclusive growth on sustainable basis, okay, sustainable basis पे होना चाहिए, okay, and if the worries of the fiscal availability, जो fiscal availabilities का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर दिया जाए, तो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, ठीक है, वो जो क्या करेगा कि एक बहुत ही हेल्प करेगा, ओके, टू अचीव अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2024। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ड्रीम है हमारा, ओके, वो अचीव हो जाएगा जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, ओके, NIP। यदि फिजिकल अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम दूर हो गया तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वो क्या हो जाएगा, अचीव करना हम लोग के लिए ईजी हो जाएगा। तो दैट इज़ आवर कंक्लूजन, ओके।
तो फ्रेंड्स ये रहा एक और ही वीडियो, ओके, आंसर राइटिंग पे। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और कुछ आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है वीडियोस में, ओके, और मेरे बोलने में। तो फ्रेंड्स यहीं तक ये वीडियो है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, comment it on this video, and also share and subscribe our channel. So friend, thank you once again.